मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's wait for 2 minutes and then we will start the class. Okay, so let us start the class because nobody is joining. So let us start the class. What was the last thing we have done in the last classes? Anybody? Sir, stable and stable systems.
स्टेबिलिटी चल रहा था सर, स्टेबल एंड अनस्टेबल में। हाँ, हम लोग 14 तारीख को लास्ट किए थे और वहाँ पर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में दिख रहे थे, और आज हम वहीं से शुरू करेंगे। And today is 20th 12/2021. Test the stability of LTI system. Of LTI systems. This is the question. Number A, h of n equals to 0.2 to the power n u of n. Number B, h of n equals to 4 to the power n u of minus n. Number C, h of n equals to 0.3 whole to the power n u of n plus 2 to the power n u of n. So these three problems are given to us and we have to find the stability of the system. So let us do the solution. All are impulse response given. So number A, h of n equals to 0.2 whole to the power n u of n. It is given to us. So what we have to do, summation of n equals to minus infinity to plus infinity mod of hn is less than infinity. We have to prove that. So let us see. Summation of n equals to minus infinity to plus infinity. Mod of h of n. What does it becomes? Summation of n equals to minus infinity to plus infinity. Now h of n is mod of 0.2 whole to the power n into un. So we can use the formula summation of n equals to 0 to infinity c to the power n, that is equal to 1 by 1 minus c. When it happens, if 0, c lies between 0 and 1.
Then it happens. This is the infinite geometrical progress formula, or infinite geometrical metric series sum formula. So that can be written as summation of n equals to 0 to plus infinity 0.2 to the power n, because what? U of n equals to 1 for n greater than equals to 0, and equals to 1 equals to 0 for n less than 0. So I have applied for this. I have decided the limit from minus infinity to 0 and from 0 to plus infinity. So I write from minus infinity to 0, everything will be 0, because n less than 0 will be 0. And this will have the value of 1. So 2 to the power n into 1 equals to 2 to the power n. That's what we have done here. So as per the formula 1 by 1 minus c, so 0.2 is the c. So I will get the formula 1 minus 0.2. So that is nothing but 1.25. Since summation of n equals to minus infinity to plus infinity, mod of h of n is lesser than infinity. So what we can write, the system is stable. I think nobody has problem. No, sir. So let us continue to the next problem. What is the second number problem? Second is 4 to the power n u of minus n. So let us do it. So we have given h of n equals to 4 to the power n u of minus n. So that implies summation of n equals to minus infinity to plus infinity. Mod of h of n. So that is equals to summation of n equals to minus infinity to plus infinity so that is 0.3 all to the power n u of, sorry, 0.3, 0.4, 4 to the power n
u of minus n. So that is can be written as n equals to minus infinity to 0 for to the power n. So that can be written as summation of n equals to 0 plus infinity for to the power minus n. So that it can be written as summation of n equals to 0 to the power infinity 1 by 4 to the power n. That is actually. So summation n equals to 0 to infinity 1 by 4 whole to the power n. So that is equals to nothing but summation n equals to 0 to infinity 0.25 whole to the power n. That is equals to 1 by 1 minus 0.25. That is equals to 1.3333. So since summation is n equals to minus infinity to plus infinity, mod of h of n equals to infinity. Sorry, very sorry. Less than. So the system is stable. ये understand किया? Yes, sir. So next is number C. C question was 0.3 whole to the power n un plus 2 to the power n un. सर हेलो सर बोल रहे हैं उसमें जो लिमिट है वो लिमिट में मतलब माइनस उसमें जैसे चेंज होगा तो वो माइनस लग जाएगा ना। यही तो हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी था, u ऑफ माइनस n था, इसीलिए हमने लिखा n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0, और वहां पर u ऑफ n था, इसीलिए हमने लिखा है 0 टू प्लस इंफिनिटी। अगर un रहता है तो इसका वैल्यू 1 रहता है, कब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे, और अगर u ऑफ माइनस n इक्वल्स टू 1 कब रहता है, n इज इक्वल्स टू 0 पे। इसीलिए माइनस इंफिनिटी से 0 लिया था ये पावर यहाँ पर, फिर इसे चेंज किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, सी टू द पावर n का फॉर्मूला है 0 टू इंफिनिटी सी टू द पावर n, तो उसे चेंज करने के लिए हमको 0 टू प्लस इंफिनिटी करना पड़ा, तो ये जो चेंज है इसीलिए पावर माइनस हो गया 4 टू द पावर माइनस n, तो हमने 1 बाय 4 टू द पावर n कर लिया। अब इसको 1 बाय 4 टू दैट इज 0.25, इसको आप c पकड़ रहे हैं c टू द पावर n, सो 1 बाय 1 माइनस c, तो ये वैल्यू आ जाए। अंडरस्टैंड? यस सर। So Hn is equal to 0.3 n un plus 2 to the power n un। तो हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी mod of Hn, so that is equals to summation of n equals to minus infinity to plus infinity 0.3 whole to the power n u of n plus 2 to the power n of u of n।
So that is equals to summation of n equals to 0 to infinity 0.3 whole to the power n plus summation of n equals to 0 to infinity So what will the value? This is 1 by 1 minus 0.3 plus यहाँ पर क्या होगा? सर उसमें 1/1 - 2 उसमें वो वाला टर्म नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा। सर 1/1 - 2 करेंगे तो वही ना सर? 1/1 - 2 मतलब क्या है? मतलब नीचे -1 और पर तो नेगेटिव आएगा, -1 आएगा सर। सी कितना है? सी तो 2 है सर। ग्रेटर देन 1 है तो हाँ फॉर्मूला सर। भूल गए। अरे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी c टू द पावर n। इफ c इज ग्रेटर देन 1 देन दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। अच्छा, इसलिए। हाँ, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला देखो, इसलिए मैंने बोला यस था सर। तुम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का और न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला यहाँ पर बहुत सारा लगेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? infinity. So since summation of n equals to minus infinity to plus infinity mod of h of n is equals to infinity, system is unstable. So that was the numericals for stability and instability. Okay. Clear? यस सर। तो देखो आज हम लोगों का 2 पीरियड था, पर कल क्योंकि आपका इंटरनल है इसीलिए सिलेबस अगर खत्म हो जाता है सिस्टम का क्लासिफिकेशन तो मैं आज छोड़ दूंगा और तुम लोगों को पढ़ने के लिए मैं आज छोड़ दूंगा, क्योंकि नया कुछ चीज आज और मैं आप लोगों को दिमाग में आज नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो सिलेबस था इंटरनल का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो 2 और चीज बाकी है, एक है एफआईआर और आईआर सिस्टम और एक रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव सिस्टम। तो इन दोनों को खत्म होने के बाद आज हम लोग 2 पीरियड लेने के बाद था, पर एक दिन सैटरडे को एक दिन हमने ज्यादा पीरियड ले लिया था, फिर भी एडजस्ट हो गया। फिर भी आज हम 2 पीरियड नहीं लेंगे, आज हम लोग 1 पीरियड में खत्म कर देते हैं। उसके बाद किसी को अगर कई जगह पे डाउट क्लियरिंग है या कोई न्यूमेरिकल को लेकर प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं। So you have a schedule of 2 classes. So I will take only 1 class because as per the internal, your syllabus will be completed within 1 classes. So another class is there. If you want to study at home, you can study on that. Or if you want to just discuss on the numericals and other problems,
you can tell me that I will also take that class. ओके सो पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं. अभी हम लोगों का और दो सिस्टम है. एक है हमारा FIR and IIR system. In FIR system, the impulse response consists of finite number of samples. The convolution formula of FIR system is given by the convolution formula of FIR system is given by y of n equals to summation of m equals to 0 to 8n minus 1. H of m, that is the impulse response, into x of n minus n, where equals to 0 for n is lesser than 0 and n is greater than equals to n. So from the above equation, if I name it equation number 1, so from equation number 1, it can be concluded that the impulse response selects only n samples of input signal. In effect, the system acts as a window that views only the most recent n input signal samples in forming the output. It neglects or simply forgets all prior input samples. Thus, FIR system requires memory of length L. In general, FIR system is described by the difference equation y of n is equal to summation of m equals to 0 to n minus 1 b of m equal into x of n minus m, where b of m equals to impulse response m from m equals to 0 to n minus 1. Okay, understand? नहीं समझ पाया सर, एक बार सर फिर से. FIR सिस्टम क्या है? इंपल्स रेस्पॉन्स फाइनाइट होगा, अर्थात जो इनफाइनाइट रेस्पॉन्स होगा
वो फाइनाइट वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। इसे कहते हैं फाइनाइट ड्यूरेशन इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। तो यहाँ पर देखो ये जो y ऑफ n है, y ऑफ n इक्वल्स टू समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 0 to n minus 1 h of m x of n minus 1, where h of n equals to 0 for n lesser than 0 and h of and h I written it is n, and n is greater than equals to capital. Understand? तो मतलब क्या है? It can be concluded that the impulse response selects only n samples of the input signal. तो सिर्फ n lesser than 0 से और n greater than equals to n, तो मतलब सिर्फ आपका n सैंपल्स के ऊपर सिलेक्ट करता है इंपल्स रिस्पॉन्स। तो ये क्या इफेक्ट करेगा? ई इफेक्ट करेगा, इट एक्ट्स एज ए विंडो दैट व्यूज ओनली द मोस्ट रिसेंट n इनपुट सिग्नल सैंपल्स इन फॉर्मिंग द आउटपुट। तो मतलब सिर्फ n सैंपल्स को ही लेता है, बाद बाकी जितना सैंपल्स है वो सब भूल जाता है। तो एफआईआर सिस्टम के लिए होगा, एफआईआर सिस्टम ऐसा मेमोरी होगा जिसका लेंथ n संख्यक है, n से ज्यादा वो नहीं ले पाएगा, n से कम वो नहीं ले पाएगा, n संख्यक होने से हो जाए। इसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन वगैरह थोड़ा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। इंपल्स रिस्पॉन्स आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट देखना पड़ेगा। जो सिस्टम फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, इसका आपको एफआईआर आईआईआर फिल्टर में आप लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पर तो ऐसा सिस्टम नहीं है। जब फिल्टर पर आएंगे तब आप लोग समझ पाएंगे कि एक एफआईआर और आईआर सिस्टम है कि नहीं। जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स, इफ द इंपल्स रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स, तब उसको कहते हैं हम लोग एफआईआर सिस्टम। और अगर इंपल्स रिस्पॉन्स कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स, तब हम लोग वो कहते हैं आईआर सिस्टम। आप सर समझे? जैसे कुछ एग्जांपल वगैरह सर थोड़ा बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है सर कुछ भी, मतलब कैसा क्या है, कैसा क्या है मतलब क्या समझ नहीं आ रहा? डेफिनेशन से अरे नहीं पकड़ पा रहे हैं, थोड़ा अरे एग्जांपल वगैरह। तुम ये इस सैंपल पे वैल्यू बसाओ ना। इस सैंपल पे अगर तुम वैल्यू बिठाते हो, जैसे कि m मानो m इक्वल n इक्वल्स टू 0 होगी, तो y ऑफ 0 आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा, m का वैल्यू शायद देखो h ऑफ m का वैल्यू 0 से ही होता है, तो h ऑफ 0 n 0 माइनस 0, तो वो x ऑफ 0 बन गया। फिर y ऑफ 1 जब होगा तब आएगा आपका h ऑफ 0 x ऑफ 1 माइनस 0, सो x ऑफ 1। तो y ऑफ 2 पे होगा h ऑफ 0 x ऑफ 2। तो ये देखो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? इंपल्स रिस्पॉन्स फाइनाइट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, n नंबर ऑफ सैंपल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल n नंबर ऑफ सैंपल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उसके ऊपर कोई कुछ नहीं डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए फाइनाइट हो गया। यस सर। तो इसे कहते हैं फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। और इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर इंफिनिटी तक डिपेंड करता, n सैंपल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उसको इंफिनिटी तक हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। जैसे कि अगर यही डिफरेंस इक्वेशन ऐसा बन जाए, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा y ऑफ n, अगर ऐसा हो जाता है माइनस ऑफ समेशन ऑफ m इक्वल्स टू 1 to कैपिटल N a of m
y of n minus m plus summation of m equals to 0 to n b of m x of n minus m। तो ये इनफाइनाइट बन गया। देखो, जब तक इसके ऊपर डिपेंडेंट थे तब फाइनाइट वैल्यू आएगा, क्योंकि आप देखो m 0 से स्टार्ट होगा, इसीलिए n माइनस 1 तक गया है। अगर m 1 से स्टार्ट होता तो ये n तक खत्म होता है, मतलब n सैंपल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। पर यहां पर देखो m ये आगे चला है और ये 2 चला है, तो n सैंपल्स के प्रीवियस भी वो डिपेंडेंट हो गया। समझ गए? नहीं सर, ये नीचे वाला नहीं समझा मैं। इसमें इनफाइनाइट कैसे हो जा रहा है नीचे वाला में? इट इज आया यार, क्यों हो रहा है देखो, क्योंकि अगर तुम ऑल द पास्ट इनपुट आप यहां पर लिख ले तो आप इनफाइनाइट, यहां पर देखो ये प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, प्रेजेंट। और यहां पर देखो ये वाला क्या है, ये पास्ट, और ये क्या है, प्रेजेंट। तो ये इसके लिए अलग सा मेमोरी लगेगा, इसके लिए तो n नंबर ऑफ मेमोरी आप रख रहे हैं, क्योंकि n m का वैल्यू n तक जाएगा। एक 0 के लिए एक सीरीज ऑफ वैल्यू मिलेगा समेशन उतर के, 1 के लिए एक सीरीज का वैल्यू मिलेगा, 2 के लिए एक सीरीज का वैल्यू मिलेगा। तो ये तो n नंबर ऑफ सैंपल्स के ऊपर मेमोरी आपको लग रहा है। आप देखो ये माइनस आ गया है, मतलब उसके पिछले m इक्वल्स टू 1 to n, मतलब उसका पिछले वाला, पास्ट का वाला। तो फिर इसका भी एक सेट ऑफ वैल्यूज लगेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 0 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर 1 के लिए, 2 के लिए ऐसा वैल्यू आएगा। तो ये एक पास्ट वैल्यू है, ये एक प्रेजेंट वैल्यू है। तो दो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। यहाँ पर जैसे कि n नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए था, तो ये फाइनाइट नंबर वैल्यूज के लिए है। यहाँ पर कितना पास्ट वैल्यूज होगा, यहाँ पर कितना पास्ट वैल्यूज, प्रेजेंट वैल्यूज होगा, ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, और भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसके लिए मेमोरी क्या लगेगा, यहाँ पर अगर मेमोरी, इस सिस्टम का मेमोरी पहचाने तो इस सिस्टम का मेमोरी क्या लगेगा, इनफाइनाइट मेमोरी लगेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ n नंबर ऑफ सैंपल्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, और भी पास्ट सैंपल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे। अंडरस्टैंड? सर ये पास्ट वाला मतलब ये नहीं समझे, मतलब इसमें पास्ट वगैरह कैसे सर? पास्ट वगैरह नहीं मतलब समझ, मतलब इसमें पास्ट का मतलब कैसे हो रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे उसमें m का वैल्यू 0 डाल देंगे और n का वैल्यू 0 डालेंगे तो प्रेजेंट 0 से स्टार्ट होते हुए जाएगा, कहां पर जो होगा, डालेंगे ये उसी तो को। m का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू तो प्रेजेंट है, m इक्वल्स टू यस सर। 0 से n, ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया। और ये वाला, ये तो आगे का वैल्यू इसमें है। m, हाँ सर। आप आगे का वैल्यू है, तो एक प्रेजेंट का वैल्यू है, एक आगे का वैल्यू है, क्योंकि माइनस आ रहा है तो आगे का वैल्यू मतलब सर ये फ्यूचर का मतलब जैसे। फ्यूचर कैसे, पास्ट का वैल्यूज है। जब m इक्वल्स टू 1 से n तक, अगर पूरा लिमिट देखो,
Okay, so let us start. I think everybody has joined. Example, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अब जो बोल रहे थे एग्जाम्पल दे रहा हूं. h of n impulse response है equals to -1 for n equals to 3, 4 and equals to 1 for n equals to 1, 2 and equals to 0 otherwise. तो ये क्या है आप बता सकते हैं? सर इसमें फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, मतलब 3, 4 पर और 1, 2 और 0 अदरवाइज पर. फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ वैल्यू मतलब n इक्वल्स टू 3 या n इक्वल्स टू 4, ये सैंपल्स का इसका वैल्यू 1 आएगा. तो मैंने फाइनाइट कर दिया आपको कि यही सैंपल्स पर मेरा वैल्यू 1 है. तो फाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स. इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है? इनफाइनाइट ड्यूरेशन होता है. क्या लिखते हैं? डेल्टा एन इक्वल्स टू 1 फॉर एन इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0 अदरवाइज, ऐसा लिखते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? हम आपको फाइनाइट कर रहे हैं कि n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 ही पर आपका hn का वैल्यू 1 रहेगा, -1 रहेगा. तो फाइनाइट ड्यूरेशन नहीं हो गया. सिर्फ 3 के लिए या सिर्फ n इक्वल्स टू 4 सैंपल्स के लिए आप मतलब 3 सैंपल एंड 4 सैंपल ऑफ टाइम आपका hn का वैल्यू -1 मिलेगा. सेम अगर n का वैल्यू 1 रहेगा और n का वैल्यू 2 रहेगा, मतलब 1 सैंपलिंग टाइम पे या 2 सैंपलिंग टाइम पे, अब 2 सेकेंड हो सकता है, 2 आवर होता है, 2 मिनट हो सकता है, कुछ भी, वहां पर hn का वैल्यू आपको 1 मिलेगा. तो ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए इसका वैल्यू आ रहा है ना. मैंने क्या बोला? FIR, फाइनाइट ड्यूरेशन इंपल्स रिस्पॉन्स. तो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए आपका वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर. अंडरस्टैंड? यस सर, यस. अभी समझे आया? हाँ सर, समझ गया सर. अच्छा, अब तुमको इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए कैसा आएगा देखो. अभी इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए कैसा आएगा देखो. अब देखो, ये मेरा एक सीक्वेंस है. h of n equals to a to the power n 2n un. हाँ, तो क्या देखो, इसका कोई ड्यूरेशन दिया हुआ है? नहीं सर, इसका कुछ नहीं दिया. तो ये इनफाइनाइट हो गया. यस सर, ये समझ गए सर, लेकिन उसमें जो डेफिनेशन वाला जो ना, था वो तो उसको समझ आपका, नहीं पा रहे थे. वो तो आप उसको कन्वोल्यूशन, कैसे, वो हाँ, तो आपको कैसे ओपन कैसे कर रहे थे नहीं समझ आ रहा था सर. उसको ओपन कैसे कर रहे थे पूरा, मतलब जो है ना समेशन को. अच्छा, वो डिफरेंस इक्वेशन से समझ रहा था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था. ठीक है, मैं डिफरेंस इक्वेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा. ये है FIR सिस्टम, इनफाइनाइट ड्यूरेशन, IIR. ठीक है. यस सर. Okay, everybody please give your attendance because that is the end of system. और एक सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं
recursive, non-recursive, but that is a little bit मतलब वही एक ही चीज होता है। रिकर्सिव क्या होता है, जो a system whose output at time n depends on any number of past output values as well as present and past inputs। मतलब पास्ट आउटपुट वैल्यूज, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट के ऊपर जितना भी हो सकता है एनी नंबर, उसके इंस्टेंस टाइम एन के डिपेंड करता है, उसे रिकर्सिव बोलते हैं। और जो वाइस वर्सा, जो सिर्फ प्रेजेंट के लिए ऊपर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता, आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पास्ट आउटपुट बट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, इज कॉल्ड नॉन रिकर्सिव। थोड़ा थोड़ा भाषा चेंज है। भाषा चेंज मतलब क्या है, एक जगह है वो डिपेंड करता है, मींस n is depending on, n depends on past output, okay, present input, or present output. That is called recursive. That is called recursive. And non-recursive, present input, sorry, it is past. Present input, past output, past input, sorry. Present input, past input and past output, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है तो रिकर्सिव। अगर सिर्फ प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, नो आउटपुट, तब उसको कहते हैं हम लोग नॉन रिकर्सिव। अंडरस्टैंड? रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव। यस सर। जैसे कि एक एग्जांपल अगर देते हैं, जनरलाइज्ड एग्जांपल, y of n is a function of y of n minus 1 comma y of n minus 2 comma dot dot y of n minus n, x of n minus 1, x of n minus 2 dot 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 x of n minus m. So this is a recursive. और नॉन रिकर्सिव क्या होगा, y of n equals to f of x of n minus 1 dot 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 x of n minus n. ये बन गया मेरा नॉन रिकर्सिव। Understand? And this is our यस सर। recursive. So everybody please give your attendance. This is your end of today's class. और कोई प्रॉब्लम है या कहीं पर भी कोई समस्या है तो बता सकते हो। फास्ट मिड टर्म का आपका यही। हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल भी एक सिस्टम होता है क्या? इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड सिस्टम। हाँ सर। इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड सिस्टम, हाँ किसी जगह पे हो सकता है, कहीं देख सकते हो, पर ये ही मेन सिस्टम्स है। अगर क्लासिफिकेशन सब सिस्टम बोलते हैं तो यही मेन है। और कहीं पर भी और भी कुछ आपको क्लासिफिकेशन दिया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर
मेन जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन अगर बोलेंगे, अगर जनरलाइज्ड बोलते हैं तो जैसे कि हम ये भी नहीं रखते, रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव को भी हम जनरलाइज्ड में नहीं रखते, ये भी थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा कैटेगराइज्ड हो जाएगा। हाँ, जनरलाइज्ड में जैसा होता है लीनियर नॉन लीनियर, कॉजल नॉन कॉजल, स्टेबल अनस्टेबल, हाँ ये सब होता है, वहां पर एलटीआई सिस्टम होता है, ये सब होता है, एफ आई आर आई आर, ये एक इम्पोर्टेंट है। तो ये सब लीनियर टाइम इनवेरिएंट नॉन इनवेरिएंट, तो ये सब वो आपका वो क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। यस सर। सो कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा, चैट बॉक्स में मुझे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट का अटेंडेंस मिला है। मैं बोल रहा हूँ अभिजीत कुमार का अटेंडेंस मिला है, सरोज कुमार का अटेंडेंस मिला है, स्वरूप कुमार का अटेंडेंस मिला है, शिल्पा शाह का अटेंडेंस मिला है, कुंदन कुमार का अटेंडेंस मिला है। बाद बाकी अगर कोई है तो अटेंडेंस दे दीजिए, जैसे कि अपना तालिब भी है, रवि कुमार है, सुधांशु है, इन लोग अभी तक चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं दी। तो अगर अटेंडेंस नहीं होता तो आपका अटेंडेंस नहीं पड़ता, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कि सुधांशु रंजन, तालिब अंसारी, आप लोग प्लीज आपका अटेंडेंस दे दीजिए। तालिब अंसारी कब मिल गया? सुधांशु रंजन आप है कि नहीं है? सुधांशु रंजन, सुधांशु रंजन, आर यू देयर? कैन यू हियर मी, सुधांशु रंजन? मालूम नहीं क्या करे। ओके, सुधांशु रंजन तो बात नहीं कर रहे, मालूम नहीं क्या कर रहे वो। सुधांशु रंजन जी, अगर आपका अटेंडेंस दे देते तो हम लोग खुश हो जाते। तस्वीर बहुत अच्छा है आपका, पर अटेंडेंस दीजिए। आई थिंक ही इज नॉट हियर। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। और कोई अगर डाउट है तो हम क्लियर कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, वरना ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जामिनेशन है उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से देना, बहुत ही आसान सा है। कुछ जनरलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होता है वो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। वो है जैसे कि आपको देखा है आपके डिपार्टमेंट में सभी ने दिया है, वैसे ही बोलता हूँ। क्वेश्चन पेपर मतलब गूगल फॉर्म होगा, आपका जो एग्जाम होगा एग्जाम के पहले ही आपको दिया जाएगा। वहां पर अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर जरूर लिखिए। एक बार ही रेस्पॉन्स सबमिट हो सकता है, उसके बाद आपके पास चेंज का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। 1 घंटा का एग्जाम होगा, फुल मार्क्स 20 होगा, ठीक है। जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आपको रेस्पॉन्स जमा हो जाएगा। उसके बाद कोई रेस्पॉन्स जमा देगा तो वो डिससिलेक्ट हो जाएगा।
और आप लोगों को अलाउ भी नहीं होगा रिस्पॉन्स जमा देने के लिए। रिजल्ट हम लोग आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद, पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद पब्लिश कर देंगे। 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, जिनमें से 10 1 मार्क्स का होगा, 5 2 मार्क्स का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट मैंडेटरी। अच्छा, क्वेश्चंस होगा थियोरेटिकल और एनालिटिकल होगा। एनालिटिकल जो होगा वो 2 मार्क्स कैरी करेगा, और जो थियोरेटिकल या आसान होगा वो 1 मार्क्स कैरी करेगा। अब कभी कभी आपको लग सकता है कि कोई क्वेश्चन के लिए 1 से ज्यादा सवाल आंसर हो सकता है, तो कोई भी अगर राइट आंसर आपने मार्क किए थे तो हम आपको नंबर दे देंगे। ठीक है? यस सर। ओके। और अगर कोई, कभी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, कभी हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक या क्वेश्चन में कुछ गलती हो, तो उसे अगर आप व्याख्या दे देंगे कि ये गलती है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, यस सर। thank you very much for attending the class. Best of luck for your examination, midterm examination. Have a good day. थैंक यू सर।